Hello, dear friends. This is 29th of May. Hope you enjoy the lecture. Before I start this, I would like to recapitulate whatsoever I have discussed in the previous lecture. Okay. So in the previous lecture, we have discussed about production budget, including variance report and labor budgets. That is, under labor budget, we learn how to calculate the labor requirements and a standard time for each operations and conversion of hours in into labor requirements. So these has been discussed in the 28th lecture. Okay. Now I am going to start uh, the profit and loss account and balance sheet. Okay. So let us start with the learning outcome of this session. Okay. So after this session, that means at the end of this session, students will be able to describe the concept of profit and loss account, prepare the balance sheet, and explain the profit and loss account. Okay, so let us start with introduction of profit and loss account. Okay, so before we talk about profit and loss account, it is important to have a definition of what it is. Okay, so let us look at the two root of profit or loss. First, that is the account, the profit and loss of an account. Okay, so two root is the first profit and second जो है loss account. अब जो है कि first profit. So profit is a financial benefits realized when revenue generated from a business activity exceeds expenses. यानी प्रॉफिट जो है कि जब हम कोई बिजनेस एक्टिविटी करते हैं, व्यवसायिक क्रिया करते हैं, तो उसमें जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स है वो रेवेन्यू के रूप में तब जनरेट होता है जब एक्सपेंसेज जो से ज़्यादा हमारा इनकम हो। सेकेंड पॉइंट है कि लॉस, यानी जो खर्च है उससे ज़्यादा जो भी आय होगी ना, वो हमारा प्रॉफिट होगा। अब लॉस लॉस इज एन excess of expenses over revenue, either for a single business transaction or in reference to the sum of all transactions for an accounting period. तो लॉस यानी जो भी हमें प्राप्त हुआ उससे ज़्यादा जितना ही हमारा खर्च हुआ वो हमारा लॉस हुआ। जैसे मान लो कि आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया किसी के प्रोडक्शन में और जो बेचा था आपको 80 रुपया प्राप्त हुआ, यानी 20 रुपये की लॉस हुई, तो ये हुआ लॉस। अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पे। ठीक, तो the profit loss account is key financial statement which represents an organization's income and expenses for a period of time. जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है वो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसमें उसका सारे ट्रांजैक्शन का वर्णन रहता है, विच रिप्रेजेंट्स ऑर्गेनाइजेशन इनकम और एक्सपेंसेस, जो एक सर्टेन टाइम पीरियड में किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का क्या आय रहा है और किस मदों पर क्या क्या खर्च रहा, इसका उसमें वर्णन रहता है। ए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज एन अकाउंट compiled to show gross and net profit or loss during a specific time period. Profit or loss equal to your income minus your expenses. Okay, that is the formula. यानी जो आपका इनकम हुआ, जो आपका एक्सपेंडिचर हुआ, इन दोनों के बीच जो अंतर हुआ वहीं आपका क्या हुआ, प्रॉफिट। यदि ये ज़्यादा रहेगा इनकम और एक्सपेंडिचर कम रहेगा तो प्रॉफिट होगा, यदि इनकम कम रहेगा एक्सपेंडिचर ज़्यादा रहेगा तो फिर क्या होगा, लॉस होगा। तो ये है, ये बताता है कि इट इज एक स्टेटमेंट। अब हम इसके बाद आते हैं, वो है नेक्स्ट पॉइंट इसी में, profit and loss account is prepared after preparation of trading account. The main objectives of preparation of profit and loss account is to achieve operating result of a company at the end of accounting period. जो अकाउंटिंग पीरियड जैसे ही जो अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म होता है उसके बाद जो है कि जो ऑपरेटिंग रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए और उसका एनालिसिस करने के लिए इसको हम प्रिपेयर करते हैं। दिस अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट,
यानी इसमें पैसे के रूप में सारी चीज़ वर्णन रहता है कितना, और हैविंग डेबिट साइड यानी कि जहाँ से कि पैसा निकला हुआ है, माइनस का चिन्ह लगा हुआ, क्रेडिट साइड जहाँ पैसा जमा हुआ है उन सारी चीज़ों को। एंड ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज आर रिकॉर्डेड इन डेबिट, जो भी अदर खर्च हैं, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है, खर्च हैं, उनको डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है ऑफ अकाउंट। एंड ऑल इनकम एक्सेप्ट क्लोजिंग स्टॉक्स एंड रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड। तो जितने भी जो इनकम है वो सारे जो है क्रेडिट साइड में हमारे वर्णन होते हैं। जैसा कि अभी हम फिगर देखेंगे तो ये कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर आपको होगा। So, in profit and loss account, if debit side is excess, देखिए, then credit side, the difference is called net loss। क्या है भाई कि डेबिट ज़्यादा है, निकासी ज़्यादा हुआ और जमा कम हुआ तो नेट लॉस होगा। If credit side of profit or loss account is excess, then the debit side, the difference is called नेट प्रॉफिट। यानी कह रहा है कि यदि जो क्रेडिट साइड जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का है वो ज़्यादा रहे डेबिट से ना, तो उसमें क्या होगा, नेट प्रॉफिट होगा। तो ये भी आप समझ जाइए कि यहाँ पे ज़्यादा इनकम हुआ और निकासी कम हुआ। हम आते हैं व्हाट डज ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड, क्या क्या उसमें जुड़ता है। तो एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल इंक्लूड योर क्रेडिट्स एंड विच इंक्लूड्स टर्नओवर एंड अदर इनकम, and deduct your debits, which include allowance, cost of sales, overheads, etc. These are used to find your bottom line figure, either your net profit or your net loss. Okay, अब हम आते हैं व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज्ड फॉर। व्हाट इज ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज किया जाता है, और इस जो फिगर जो नीचे दिया गया है इससे और ज़्यादा क्लियर होगा। तो फर्स्ट कह रहा है कि द प्रॉफिट shown in your profit and loss PL account, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स आर यूज्ड टू कैलकुलेट बोथ इनकम टैक्स एंड कारपोरेट टैक्स। यदि हमको इनकम टैक्स भरना रहता है कि आपने कितना किसी पार्टिकुलर बिजनेस से आपने कितना अर्न किया, तो आपकी इनकम कितना हुई उसी पर तो आप टैक्स दीजिएगा, तो इसके लिए कैलकुलेट किया जाता है। फेलियर टू फाइल आइदर दिस करेक्टली द रिजल्ट इन यू पेइंग एडेड इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी। यदि आप इसको सही से कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, इसको सही से भरते नहीं हैं, तो आपको इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा, पेनाल्टीज भी भरनी पड़ेगी कुछ सर्टेन रेट से। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू गेट द रिपोर्ट राइट। तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसीलिए इसके लिए अकाउंटेंट की बहाली होती है कंपनी में, जो कि इसका सही से कैलकुलेशन कर सके। फिर कहता है कि द पीएल एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टेक्स रेवेन्यूज इन अकाउंट फॉर a specific period, and it also records any expenses or costs incurred by revenues such as depreciation and taxes. Okay, then profit and loss account can be explained with the help of flowing profit and loss statement। अब एक जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिया गया है उसके माध्यम से हम लोग इसको थोड़ा सा वर्णन करते हैं। इसको छोटा कर लेते हैं कि आपको पूरा कंप्लीट फिगर दिख पाए, ठीक ना। तो आप देख रहे हैं इस पे। अब इसमें देखिए ये जो है ये डेबिट, डेबिट मतलब क्या बताए, निकालने आता है, इस साइड में निकलने वाला जो भी है अमाउंट उसका वर्णन है। ये है क्रेडिट साइड, यानी क्रेडिट साइड इसमें जो जमा हुआ है उसका। अब देखिए ये इनका योग यदि हम कंप्लीट करेंगे, एडिशन करेंगे तो कितना आएगा, 11,500। ओके, अब देखिए ये ओपन स्टॉक इतना हुआ, परचेज में इतना हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट इतना हुआ, ये सारी चीज को यहाँ कैलकुलेट किए। दूसरी तरह प्रिंटिंग स्टेशनरी पे खर्च इतना, इलेक्ट्रिसिटी पे इतना, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इतना, और देन मिसलेनियस इतना, एंड नेट प्रॉफिट इतना। और इन सबको हम यदि कैलकुलेट करते हैं तो आ गया 46। ओके, तो जो ये कितना आया 4600 आया। अब दूसरे क्रेडिट साइड सेल्स से 9000 का इनकम हुआ, और 25 किससे हुआ,
बाई स्टॉक, इन दोनों को यदि हम ऐड करते हैं तो ये आ जाता है 11,500। ठीक है, यहाँ भी 11,000 यानी जो है क्रेडिट और डेबिट इक्वल है, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस का कंडीशन है, जितना निकला उतना ही जो है। और अब देखिए फिर ग्रॉस इतना हो गया, इंटरेस्ट इतना हो गया, फिर यहाँ पे सारी चीज यानी दोनों इक्वल है। तो इस तरीके से हम देखें कि जो हमारा बैलेंस शीट दोनों क्रेडिट और डेबिट इक्वल यानी निकासी और व्यय जो है बराबर वाला सीन हमें यहाँ दिख रहा है, ठीक ना। तो इस तरीके से हम बनाते हैं। और यहाँ एक दो जो टर्म दिए गए हैं, पहला तो ये टर्म दिया गया है क्लोजिंग स्टॉक। तो जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वर्ष के अंत में जो भी वस्तुएं शेष बची रहती है तथा बिक्री की प्रतीक्षा करती रहती है स्टॉक में, तो उसे हम जो है क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं ना। क्लोजिंग स्टॉक उसको कहा जाता है। तो वो हम क्रेडिट साइड में ही उसको लेते हैं। तो ओपन स्टॉक भी उसी प्रकार है कि ये स्टार्टिंग टाइम की बात है, विच फाइनेंशियल सिक्योरिटी ओपन इन द मार्केट व्हेन ट्रेडिंग बिगिंस, जब बिजनेस शुरू होता है, तो उसी प्रकार ओपन स्टॉक है। तो आप ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट समझ। अब उसके बाद आते हैं बैलेंस शीट ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आप ध्यान से सीखिएगा कि बैलेंस शीट जो है कंपनी में ज़्यादातर इसका ज़्यादा महत्व होता है। अब ए बैलेंस शीट इज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट रिपोर्ट्स ए कंपनीज एसेट्स, लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स इक्विटी एट ए specific point in time and provides basis for computing rates of return and evaluating its capital structure। तो जो बैलेंस शीट है उसमें ये हमें क्लियरली रहता है, एक रिपोर्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जिसमें कंपनी का एसेट्स क्या है, उसकी लायबिलिटीज क्या है, कितनी कंपनी की संपत्ति अपनी है, कितना उन्होंने उधार लिया है जो देना है, शेयर होल्डर की जो इक्विटी से कितना है उस पार्टिकुलर पॉइंट पे, देन पूरी तरीके से जो है ये उसका कैपिटल स्ट्रक्चर का वर्णन रहता है। इट इज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड स्नैपशॉट ऑफ व्हाट कंपनी ऑन्स एंड ओज, यानी यह एक पूरी तरीके से एक पिक्चर है, स्नैपशॉट है, जो ये बताता है कि कंपनी का क्या अपना है और क्या बकाया है, यानी किसको उन्होंने भाड़ा पर लिया है या किस लाइबिलिटीज है, एज वेल एज अमाउंट इन्वेस्टेड बाय शेयर होल्डर्स। It is used along with other important financial statements such as income statement, a statement of cash flow, in conducting fundamental analysis or calculating financial ratios. Balance sheet has two main heads. ये जो बैलेंस शीट के दो मेन हेड होते हैं, पहला एसेट्स और दूसरी लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज जो है जिसको हमने उधार कहीं से लिया है, उसको जिसको भरपाई करनी है, एसेट्स जो अपनी है। Assets are those resources or things which company owns, कंपनी की अपनी है, and liabilities on the other hands are debt, debt और obligation of company, उसकी देयताएं हैं, उसको जो है कि उसको रीपेमेंट करना है, वो एक ऋण है। अब जो मैंने डिस्कस किया बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटीज को, उसका मान लेते हैं कि एबीसी कंपनी का एक बैलेंस शीट है। ओके, एबीसी कंपनी है और इसका एक बैलेंस शीट है, ठीक ना। तो देखते हैं कि कैसे है। ये देखिए, ये अमाउंट है, ये एसेट्स है, क्या है, एसेट्स है, ये लाइबिलिटीज है। एसेट्स और लाइबिलिटीज को अच्छे से हम लोग समझ लिए हैं, ठीक ना। अब इसमें इतना जो सेक्शन है वो क्या है, एसेट्स में कैश, पेटी कैश, टेम्पोररी इन्वेस्टमेंट, अकाउंट रिसीवेबल नेट्स, इन्वेंट्री, सप्लाईज, प्रीपेड इंश्योरेंस। तो इन सभी को हम जोड़ते हैं तो ये कितना आता है, 89,000। उसी प्रकार यहाँ पर आप देखिए, जो इन्वेस्टमेंट है वो 36 है, 36 क्या है, 1000 है।
उसके बाद इसको हम यहाँ से ये सारी चीज़ों को जोड़ते हैं तो ये हमें प्राप्त होता है 3,37,000। ओके। उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है इनको देखिए, ये दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 3,05,000 प्राप्त होगा और रेस्ट ये है तो टोटल यहाँ 7,70,000। ये हमारा जो सेक्शन है ये क्या है? एसेट्स, संपत्ति। ओके। दूसरी जो है कि ये लायबिलिटीज, ऋण जिसको कहेंगे, देयता जिसको हमें देनी है, जो उधार लिए हैं, उसमें से यदि यहाँ से यहाँ तक हम जोड़ेंगे तो ये आएगा 61,000। ओके। नोट पेएबल, अकाउंट पेएबल, वेज पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल, टैक्स पेएबल, ये सारी चीज़ों को। ओके। उसके बाद लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज 20,000, बॉन्ड पेएबल 4 लाख और टोटल कितना आया? तो 4,20,000 कैलकुलेट किए। टोटल लायबिलिटीज क्या हो गया? अब इसको जोड़ देते हैं, इसको टोटल लायबिलिटीज क्या आ गया? 4,81,000। ओके। और उसके बाद अब जो है ये देखिए, कॉमन स्टॉक, रिटेन्ड अर्निंग्स, अक्यूमुलेटिव एंड अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम माइनस इतना, टोटल ये कितना हो गया? 2,89,000। अब इन सारी को हम जोड़ेंगे तो ये प्राप्त हमको कितना होगा? ये प्राप्त हमको होगा 7,70,000। यानी बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज इक्वल हो गया। तो ये हमें क्लियर स्नैपशॉट, चाहे वो इनकम का, एक्सपेंडिचर का, लायबिलिटीज का, कितना शेयर होल्डर्स का है, इन सारी चीज़ों का एक क्लियर कट स्नैपशॉट है। So, in conclusion, we can say that during this session we have discussed about profit and loss account and balance sheet, where we learned that a profit and loss account is a key financial statement which represents an organization's income and expenditure of particular period, while balance sheet is a financial statement that provides snapshot of what a company owns and owes, यानी कंपनी का अपना क्या है और क्या उन्होंने जो ऋण के तौर पर लिए हैं, क्या उधारी के तौर पर लिए हैं। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन टू टैक्सेज वुड बी डिस्कस। ओके। तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस फॉर सेल्फ असेसमेंट है, इसको आप सोल्व कीजिए और सोल्व करके अपने लर्निंग को आप चेक करिए। यदि कोई जो वर्ड्स है आपको नहीं समझ में आता है तो यहाँ मैं ग्रोसरी दे रखा हूँ कीवर्ड्स, यहाँ देख लीजिए और आपको